गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस बुक का शिवा छत्रपति नाम का बुक है जिसका सीरीज हमने चालू किया है। तो आज हम करने वाले हैं उसका 5th चैप्टर जो है शिवाजी एजुकेशन और शिवाजी की शिक्षा। इसके पहले हमने 4 चैप्टर में जाना कि शिवाजी ने स्वराज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या किया और उनका चाइल्डहुड जाना हम लोगों ने। अब आगे का स्टोरी हम जानते हैं कि उनका एजुकेशन के बारे में क्या होता है, उनकी शिक्षा कैसे हुई। ठीक है, यस चलो स्टार्ट करते हैं। यस So we will try to explain you in English as well as in Hindi. All right? यस So let's start. So beginning of Shivaji's education. शिवाजी की शिक्षा की शुरुआत। ठीक है? यस Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. In the Bangalore court, he had under his patronage artists and scholars of various languages. He appointed intelligent teachers for Shivaji. Shivaji's education began when he became 7-year-old. Soon Shivaji became skilled in the art of reading and writing. He began to read the stories from Ramayana, Mahabharata and Bhagavad on his own. To teach him warfare, Shahaji Raje had appointed some teachers. They began to teach Shivaji to ride a horse, to wrestle, to use swords and dandapatta. Thus, at the age of 12, Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts. Soon, Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of the Nayakas, local chiefs in Karnataka. Before setting out upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jizabai to Pune. With them, he sent elephants, horses, and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals, and renowned teachers. शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। बेंगलोर दरबार में उनके संरक्षण में विविध भाषाओं के कलाकार और विद्वान थे। उन्होंने शिवाजी के लिए बुद्धिमान शिक्षक नियुक्त किए। शिवाजी की शिक्षा तब शुरू हुई जब वे 7 वर्ष के हुए। शीघ्र ही शिवाजी पढ़ने लिखने की कला में निपुण हो गए। उन्होंने स्वयं रामायण, महाभारत और भगवत की कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें युद्ध कला सिखाने के लिए शाहजी राजे ने कुछ शिक्षक नियुक्त किए थे। वे शिवाजी को घुड़सवारी, कुश्ती, तलवार और दंडपट्टा चलाना सिखाने लगे। इस प्रकार 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी विद्या और कला की विभिन्न शाखाओं से परिचित हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक में नायकों जो कि स्थानीय सरदारों के राज्यों को जीतने के लिए एक अभियान पर भेजा। अभियान पर निकलने से पहले शाहजी राजे ने शिवाजी और जीजाबाई को पुणे भेजा। उनके साथ उन्होंने हाथी, घोड़े, पैदल सेना, खजाना, झंडा, साथ ही भरोसेमंद मंत्री, बहादुर सेनापति और प्रसिद्ध शिक्षक भी भेजे। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। और आपको लगता है कि हमको कोई और भी सीरीज़ चालू करनी चाहिए तो आप वो कमेंट करके जरूर बताइए, हम वो सीरीज़ भी चालू कर देंगे। लेट्स मूव अहेड। रेजुवेनेशन ऑफ पुणे। रेजुवेनेशन का मतलब है कायाकल्प, पुणे का कायाकल्प। जिजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। शिवाजी रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज which he had spent on Shivaneri. He could see the lofty peaks of the Sahyadri again and he became very happy. Pune at that time was not such a big city. It was totally devastated by Shahaji Raje's enemy. Properties were damaged, houses were demolished, temples had collapsed, the frightened people had fled from their villages, fields had become barren, thick forest had grown, wolves roamed in the countryside. Pune thus was totally in shambles and ruins. When the people living around came to know that Jizabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. Jizabai called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. People started settling in Pune, cultivating their land. Jizabai had the dilapidated temples repaired. In the temples, worship began morning and evening. The town was again throbbing with people. Thus, Pune was totally transformed. जानते हैं पुणे का कायाकल्प। जिजाबाई और शिवाजी पुणे लौट आए। शिवाजी को अपने बचपन के दिन याद आ गए जो उन्होंने शिवनेरी पर बिताए थे।
वह सह्याद्री की ऊंची चोटियों को फिर से देख सकते थे और वह बहुत खुश हुए। उस समय पुणे इतना बड़ा शहर नहीं था। शहाजी राजे के दुश्मनों ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। संपत्तियां भी नष्ट हो गई थी, घर ध्वस्त हो गए, मंदिर ढह गया। भयभीत लोग अपने गांव से भाग गए, खेत बंजर हो गए, घने जंगल उग आए, ग्रामीण इलाके में भेड़िए घूमते रहे। इस तरह पुणे पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। जब आसपास के लोगों को पता चला कि जीजाबाई शिवाजी के साथ पुणे लौट आई है तो वे खुश हो गए। जीजाबाई ने सबों को बुलाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पुणे में सुरक्षित रहेंगे। लोग पुणे में बसने लगे, अपनी जमीन पर खेती करने लगे। जीजाबाई ने जीर्ण शीर्ण मंदिरों की मरम्मत करवाई। मंदिरों में सुबह शाम पूजा अर्चना होने लगी। शहर में फिर से लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी। इस तरह पुणे पूरी तरह से बदल गया।